their experience in institution and whatever question they intend to just put it in a polite manner. That's all. First, who is going to? Yes. Introduce yourself, say a word about the experience, then ask the question. Good, Good morning, Honorable President Madam. I am Srinidhi Joshi, pursuing BCom Honours 3rd semester from Keshav Memorial Institute of Commerce and Sciences. Madam, in the present education system, we all know that we all study various subjects at different levels. We are informed that in the good olden days, the study of moral and ethical values were done as parallel to the education. But there is a talk that the absence and inadequacy of these values are leading to some unwanted incidents. Madam, please can you suggest us the methods aimed at improving the value system as part of curriculum at various stages? Now you can take your seat. The next student. Thank you, ma'am. Good morning, Madam. Good morning, Madam President. My name is Indu. I'm pursuing 3rd semester of MBA from Keshav Memorial Institute of Management. Madam, recent emphasis in the study of economics and business administration is to invent methods on earning profit as much as possible. But that in turn is leading to unhealthy competition and burden on the general public. So, Madam, can you please let us know, can this be the part of the study of economics and business administration? Yes. Next student. Good morning, ma'am. I am Raja Balaji. I am currently pursuing my BTech degree from Keshav Memorial Institute of Technology. It's a great honor to study in this institution as it follows cultural values and ethics. I just wanted to ask you this question. In our Indian culture, women are accorded respectable position for every important facet of life. We ascribe the attributes of wealth, learning and valor to goddesses Lakshmi, Saraswati and Durga, respectively, and we seek blessings from them. Women constitute the very basis of our culture. In the recent past, there are several instances of women being subjected to harassment and ill treatment of different kinds. Though many such instances are leading to enactment of stringent laws, the expected results are not forthcoming. In enacting and enforcing of such laws, efforts are needed to promote respect towards women, be it through curriculum in the education or in other branches of social life. Will you please indicate whether such measures can be promoted by the government agencies and departments by directly and indirectly spreading such messages? Thank you, ma'am. Next student. Good morning, Honorable Madam President. I am Kirti Priya, a final year law student from Keshav Memorial College of Law. Madam President, our Constitution identifies promotion of justice, liberty, equality and fraternity among its citizens. Several enactments are made aimed at the welfare of different groups and various other aspects. My observation has been that we can hardly see any efforts from the legislative or the executive in promotion of fraternity. On account of that, we see different people make efforts to advance their individual interests or those of their groups, being unmindful of the interest of other sections in the society. Madam President,
Can you please suggest some measures to the legislative and executive in promotion of fraternity? Thank you, ma'am. Now the last one. Good morning, ma'am. This is Anjali. I'm currently doing my BTech first year from Keshav Memorial Institute of Technology. Honorable President, there has been considerable research by rishis and scientists in ancient India and the field of science. Scientific researches were also made in the Western world over the past few centuries. The curriculum prepared for our studies does not contain any reference to the researches and inventions that were made in our country in the past. So, I would like to ask you, ma'am, is there any possibility of assimilating the researches and studies that were made in the ancient India on the one hand and those made in the recent past in the Western countries on the other hand? Thank you, ma'am. Now a big applause. On the board. मैं हिंदी में बोलूं? कैन आई? पहले तो कि मैं आईपीएस प्रोफेशनल को मिल रही हूं। बच्चे, तुम ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे एक रास्ता को तुम चुने हो जहां देश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हो। कहा जाता है शांति वहां प्रगति। शांति नहीं तो नहीं है? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। मुझे खुशी है क्योंकि बच्चे देश के भविष्य, डाइवर्स एजुकेशन के दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये देश के प्रगति में आगे जाते हैं। मुझे आज 5 बच्चे अपना क्वेश्चन पूछे। वैल्यू एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है। हम जो छोटे थे उन दिनों वैल्यू एजुकेशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन में था। इन दिनों हम थोड़ा पश्चिम एजुकेशन को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी इस एजुकेशन को नहीं फॉलो करते तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। पेरेंट्स भी, क्योंकि ये कंपटीशन, पेरेंट्स भी बच्चों को वेस्ट नहीं करते। अपने किताबी एजुकेशन को ही बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम में यहाँ यूनियन मिनिस्टर भी है और यहाँ हम लोगों का स्टेट मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स और वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। मैं सब जगह कहती हूँ अपने करिकुलम में, अपने सिस्टम में, अपने सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही, पेरेंट्स से लेकर के स्कूल तक, इवन कि समाज में भी
बच्चों को केवल पिता माता का एजुकेशन नहीं चाहिए। हम कहते हैं ये सामाजिक जीव है, समाज से भी बच्चे सीखता है। इसलिए समाज में भी ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे सीखें। इसलिए मैं ये निधि जोशी से मैं सहमत हूं कि वैल्यू एजुकेशन चाहिए। कहा जाता है मनुष्य का क्वालिटी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये क्वालिटी होना चाहिए। इस चीज को हम फॉलो करेंगे तो जरूर आगे जाके आज जो दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखाई देता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नेचर बन जाएगा। हम लोगों का प्रकृति ये नेचुरल नेचर आगे जाके हम जो तरह तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो नहीं होगा। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जरूर बातें करूंगी कि इसको भी शुरुआत से ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इसको आगे तो कि ये वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए कि घर पे भी स्कूल में भी इसी चीज को हम चर्चा करेंगे हर मिनट, हर सेकंड, हर कदम पे। मुझे लगता है हम लोगों का जनरे में आ जाएगा और नेचुरल नेचर बन जाएगा और जो भी हम फेस करते हैं वो फेस करना नहीं पड़ेगा। और ये अनहेल्दी कंपटीशन के कारण हम लोगों का जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था में हम आगे नहीं जा पाते हैं। बच्चे दुनिया में जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ा एजुकेशन। लेकिन हम कंपटीशन क्यों करते हैं? एक मकान है तो हम 10 बनाए, हैदराबाद में है तो दिल्ली में भी बनाए, चेन्नई में भी बनाए, बॉम्बे में भी एक होना चाहिए, अब्रॉड में भी जाके करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा हो उसके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन इतने अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को दिन रात उसके लिए अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसी के साथ संतुष्टता एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, सैटिस्फैक्शन। ये सबके अंदर होना चाहिए। इसीलिए सैटिस्फाई होना चाहिए कि यस आई एम सैटिस्फाइड, मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, मैं ठीक हूं। इसी माइंड को आगे रखना चाहिए। कहा जाता है ये संतुष्टता जीवन का एक की होना चाहिए। मुझे हम लोगों को छोटेपन में सिखाया जाता है सबसे अच्छा चाबी का ठीक कहते हैं कि संतुष्टता। इसलिए तो आप कॉम्पीट क्यों करेंगे? मैं जो हूं, जैसे हूं, मैं ठीक हूं। बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, पिता माता का हेल्थ केयर के लिए थोड़ा हो जाए तो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। कंपटीशन का कोई एक से एंड नहीं है, कोई लास्ट है? कोई नहीं है। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन खाते हैं क्या? 2 रोटी, सोते हैं 6 फीट का एक कोट, लेडीज हो तो एक आजकल तो भी ड्रेस पहनने लगे, नहीं तो ये
12 हाथ का एक साड़ी या एक धोती या शर्ट पैंट। दिखावा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, इसीलिए अंदर का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। मैं सैटिस्फाइड हूँ मेरे जिंदगी से, परिवार के लोगों को भी वही शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम तो कुछ करते हैं लेकिन पीछे से थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, ये पड़ोसी का ऐसे हो गया, हम किसकी वजह से थोड़ा। कल्चरल वैल्यू, संस्कृति हम लोगों का आइडेंटिटी है, उसको बनाए रखना, उसको विकास करना हम लोगों का कर्तव्य है। संस्कृति द्वारा आज जो भी हम हैं, हम परिचित होते हैं, दूसरे हमको पहचानते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे घर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, होटल का खाना अच्छा है। मेरे संस्कृति के जो भी कल्चर है वो दूसरों से थोड़ा कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। संस्कृति के लिए गर्व करना चाहिए, अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए। यस, मैं हूं, मैं इसी संस्कृति से बिलोंग करती हूं। मैं जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं जब गांव से गई, गांव में तो कोई ऐसे ये इस कम्युनिटी के है ये मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता था। जब मैं शहर में गई तो थोड़ा डिफरेंस फील किया। जब मैं कॉलेज में गई तो अपने भाषा में कोई किसी को मैं देखती हूँ तो किसी के मेरे कम्युनिटी के उनके साथ मैं अपने भाषा में बातें करती थी। कोई लोगों को कोई फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता था, इसको थोड़ा अलग करके रखते हैं। ये तो क्योंकि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फील करते थे, इंफीरियर अपने को। मतलब आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हो क्यों? एसटी हॉस्टल में तुम रहते हो, तुम जनरल हॉस्टल में रहो। मैं हूं, मैं जो हूं जैसे हूं आपके सामने हूं। इसीलिए इसी दिशा में हमको गौर करना चाहिए। आपने संस्कृति को आपको थोड़ा कुछ कमी लगता है तो उसको विकास करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। संस्कृति परंपरा के लिए इंडियन जाना जाता है, इसीलिए उसको प्यार करना चाहिए। कुछ सुधार करना चाहिए तो हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपना ओरिजिन को खोना नहीं चाहिए, ओरिजिनलिटी को बचा के रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई बोले कि सरस्वती, दुर्गा, आजकल थोड़ा होता है, ये महिला है, ये पुरुष, कहीं कहीं और उनको इसी दृष्टि से देख, महिला को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन था, भगवान को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान इतने शक्तिशाली होते तो एक अकेला आ जाते। शिव जी की शक्ति को ले आए। कृष्णा क्यों राधा जी को, रुक्मणी जी को ले आए? वो तो एक अकेला दुनिया को बना सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने उसको फील किया और माताओं को आगे रखा। ऐसे तो शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, तो क्यों एक अकेला आए? माता बिना क्यों वो अकेला नहीं रहते? जहां शिव है वहां शक्ति। शिव बिना वो
माता बिना, शक्ति बिना शिव सौभ होते हैं, लाश। इसीलिए दोनों का ये चाहिए, इसीलिए माताओं को आगे रखा। लक्ष्मी ये धन का देवी है, सरस्वती विद्या का, दुर्गा शक्ति का। इसे जितने भी देवियां हैं, कहा जाता है जब जब दुनिया शुरू हुआ कि हर गांव में देवियां होते, आज भी होते हैं, ग्राम्य देवी आज भी होते हैं। गांव एंट्रेंस करने से पहले देवी को, मैं जो हॉस्टल में थी तो मैं जो एंट्रेंस करती थी, मेरे पिताजी कहते यहाँ तुम अपने माथा टेको। दूर में एक पहाड़ था, कहते ओ दो शिव बाबा को माथा टेको, इसके बाद तुम अंदर जाओ। इसीलिए दोनों का चाहिए। ये मेंटालिटी शुरू से ही ये जैसे है, क्योंकि भगवान ने, हम लोगों का एक ही ब्लड है। मेरे जो भी ओ पॉजिटिव है, दूसरों को मैं एक जेंट्स को दे सकती, मैं 2-4 बार दी। व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक भगवान ने अपने शरीर को ऐसे बनाया है, एक महिला एक पुरुष। इसीलिए इस चीज को मानना चाहिए, दुनिया माने या ना माने। जब बाहर में महिलाओं को गाली देते हैं, लेकिन जब दुर्गा मंडप जाते हैं तो माथा अपने आप झुक जाता है। इसलिए इस चीज को नहीं आना चाहिए। हम मॉडर्न युग में जीते हैं, युग कहां से कहां पहुंच गया है, महिलाएं कहां से कहां पहुंच गए। उनके अंदर भी, मैं तो कहीं कहीं जाती हूँ, और जब मैं राज्यपाल थी, सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटी, अभी भी सभी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, देखती हूँ कि छात्राएं थोड़ा कहीं कहीं आगे है। हर माइंडसेट, शरीर का बनावट थोड़ा अलग है, लेकिन माइंडसेट ये एक जैसा ही है, थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा है। इसलिए माताओं को तो बहुत सारे ज्यादा शक्ति दिए हैं, मैं वर्णन नहीं करना चाहती, आप मुझे गुस्सा करेंगे। इसीलिए ये मेंटालिटी आज से आप नए मतलब बच्चे हैं, आगे आपका नेक्स्ट जनरेशन, उनके माइंड में वही चीज अभी से, शुरू से हम कोई भी डिफरेंस, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो दुनिया आगे चलेगा। आज जैसे ऐसे दृष्टि से देखते हैं, मुझे लगता है ये शुरू से ही। और कुसंगति मैं किसके साथ, मैं सभी पेरेंट्स को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, छोटेपन से ही बच्चों को इसी दिशा में शिक्षा देना चाहिए और नजर रखना चाहिए बच्चे किस किस से मिलते हैं, कौन सी संस्कार वाले बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उसी संस्कार, वही से नहीं कि अपने बच्चों को अच्छा हम शिक्षा दें, लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे ही, दूसरे बच्चों को भी, दूसरे पेरेंट्स को भी कभी कभी शिक्षा देना चाहिए सभी पेरेंट्स को कि दुनिया के वातावरण को ठीक करने के लिए सभी का माइंड, सभी का चाल चलन, चेहरा, व्यवहार ठीक करना चाहिए। ये जो हम लोगों का लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में मुझे बताए, बहुत अच्छा चीज़ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो लोग संविधान बनाए हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी स्वाधीनता के कितने साल हुआ? केवल 75 साल हुआ। लेकिन हम अपने आप को ये जो भी बनाए हैं बहुत अच्छी बनाए हैं, अच्छा बनाए हैं। लेकिन कहीं कहीं जो समय के हिसाब से संविधान को जाता है भी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें, संविधान जो बनाया गया और सब लोग उनके अंदर यूनिटी था,
मजहब, जात पात कुछ भी नहीं देखा गया था, सब एक साथ थे। आज पॉपुलेशन बढ़ गया है, बहुत सारे चीजें ऐसे हुआ है, बहुत सारे चीजें चेंज करने की जरूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ को कहना ठीक नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो इसके बारे में और एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। और हो रहा है भी थोड़ा बहुत, अभी प्रधानमंत्री जी ने रिविजिट करके थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और पहले भी हो रहा था। यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक ये एक पिरामिड जैसा हम रहे हैं। हम लोगों को संविधान में तो लिखा है, लेकिन पालन करना, एग्जीक्यूट करना हम लोगों का कर्तव्य है। केवल पार्लियामेंट में जो लोग मेंबर है, केवल वो लोग नहीं, जो जस्टिस बने हैं वो लोग नहीं, हम सबको भी उसको फॉलो करना चाहिए। और जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां तो बहस हो रहा है बहुत सारी चीजें, मैं उसको यहाँ बताना नहीं चाहती, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहिए ठीक जगह पे। और ये तो लास्ट मुझे क्या बोले, मुझे और तो कल्चर के बारे में मैंने बोली, कल्चर को बचाना चाहिए, संस्कृति परंपरा को बचाना चाहिए, हम लोगों का संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, और अपने आप को, मुझे लगता है अपने लिए एक संविधान बनाना चाहिए। दूसरों को देखना चाहिए, लेकिन अपने लिए, हर एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से हर कोई जब ऐसे करेंगे, देश में जरूर जो भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, जो भी बच्चियां कभी कभी रास्ते पे नहीं चल पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है वो खत्म हो पाएगा। वो हम ही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, हम भी कर पाएंगे। इसके लिए बाहर से कोई नहीं आएंगे, हम भी बनाए हैं। खत्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व तो हम लोगों का ही है। इसीलिए कभी कभी ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम में फंसा है, हम अपने रास्ता दूसरे तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उसको सुलझाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चों के साथ मुझे कुछ बातें करने का मौका मिला, और यहाँ हर तरह के, और बच्चे इतने अच्छे अच्छे सोचते हैं। मुझे लगता है ये सोचते हैं इसीलिए कि वो भी अच्छा करना चाहते हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो मुझे लगता है फ्यूचर तो बहुत ही उज्जवल, बहुत ही ब्राइट होगा, ये मुझे विश्वास हो रहा है। आज बच्चे सतर्क है, बच्चे अलर्ट है, बच्चे जो चाहते हैं, आप जो चाहोगे देश ऐसे बनेगा, क्योंकि आप देश के भविष्य हो। भविष्य आप कैसे देखना चाहते? मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ, मैं कोई बच्चा ऐसे उठ जाए, मैं पूछूं, कौन मेरा आंसर देगा? खुद बात खुद, आप भारत को कैसे देखना चाहते हो? कैसा भारत चाहते हो? इसको मैं फिर जाके जहां बोलना चाहिए वहां बोलूंगी। Same like USA and UK, how the
they are running this country. So I want to be like our country has to become like that countries, more than that countries. देखिए, ठीक है। यूएसए जैसा हम नहीं है, मैं थोड़े बहुत बोल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग यूएसए का पॉपुलेशन कितना है? कितने मजहब के, कितने जाति, कितने कास्ट, कितने मजहब के लोग रहते हैं? तो हम ऐसे नहीं है। यूएसए है। यूएसए के लोग आप अपना जो भी सिस्टम को छोड़ छाड़ के यहाँ आने के लिए बेताब है, आते भी है। इसीलिए वही तो, इसीलिए मैं कहती हूं खुद को आगे, मैं मेरे सिस्टम से कैसे आगे बढ़ूं। यस, दूसरों को भी थोड़ा बहुत फॉलो करूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जाऊं। और कोई यहां गर्ल्स, आप कैसे देखना चाहते हैं इंडिया को? आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? श्री द्रौपदी जी को मेरा नमस्कार। नाम गणेश कुलकर्णी जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यस। मुझे ये कहना है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, तो ये देश संस्कार से, बहुत बड़े रंगों से और बहुत बड़ा जो नाम है देश का, वो और ऊंचा करने का प्रयत्न करूंगा। यस। और जो अपनी कला संस्कृति, जैसा नाट्य, गाना या पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान गायक जैसे वो लोग हैं, वैसे लोग फिर से ये भारत में जन्म लेकर भारत का जो संस्कार है जो ऊपर लाने का है, बस यही है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा चीज है। बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी सीखते हैं। हाँ। क्योंकि उनमें जो क्या है, यहाँ का कथा है, यहाँ का संस्कृति है, यहाँ का जो क्या कहते हैं, जितने भी पुराण है, उसका स्टोरी है, अच्छा स्टोरी। उनके क्या है, हाथ इधर उधर करो बस हो गया, लेकिन यहाँ तो स्टोरी है। स्टोरी इतने सुंदर स्टोरीज है, गीत में भी, संगीत में भी, नृत्य में भी, हर चीज में। अच्छा, और कोई? नमस्ते मैम, मेरा नाम भाग्यश्री है। अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो मैं चाहती कि हर एक बच्चा मेरे राष्ट्र का अपने पुराण और वेद ऐसे गाए कि जैसे अभी हम लोग इंग्लिश के जिंगल बेल राइम्स और उनको जैसे सिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट मैं चाहती हूँ कि वो वेद पुराण गाए। जी किशन रेड्डी जी संस्कृति मंत्री है। आप इसको फॉलो कीजिए। ये बच्चे जो बोल रहा है, आप एक दिन ये बच्चों को डिबेट करवाइए और ये बच्चे जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय जी। अभी राष्ट्रगीत गाने के लिए extremely sorry. Now I request our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to give a message to students.
ऐसे क्यों होता है? Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan ji, Union Minister of Culture and Tourism, Sri G. Kishan Reddy ji, Telangana State Minister, Srimati Satyavati Rathar ji, President of Keshav Memorial Education Society, Justice L. Narasimha Reddy ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, faculty members, and my dear students. It is my great pleasure to be here today among such bright and enthusiastic young minds. I would like to begin by recognizing the rich history and noble mission of the Keshav Memorial Education Society. Founded in 1940 by Sri Vinayak Rai Vidya Lankar in honor of his father, Justice Keshav Rao Karatkar. This institution has lived up to its motto of Vidyaya Amrutam Osmute. That means knowledge provides immortal wisdom. It is a commitment to not only imparting conventional knowledge, but also to molding students into good citizens with strong character. The Keshav Memorial Educational Society has a rich history of activism and social responsibility. I am told that its grounds were the site of a historic flag hosting ceremony on 15th August 1947, when Hyderabad was still ruled by the Nizam. Its management committee has included prominent freedom fighters such as Narayan Rao Pawar, Banderam Matram Ramchandra Rao, and Kande Rao Kulkarni. I am particularly impressed by the Keshav Memorial Educational Society's commitment to provide free clinic, adoption of village for development, and efforts to provide free education to all the children who lost a parent due to COVID-19. The society's focus on instruction in Marathi, Hindi, and Telugu is a step towards its inclusive approach to education and serving the needs of the community. I congratulate the present management of the society for undertaking this important work. Education is the foundation upon which a nation is built. It is the key to unlocking the full potential of every individual. I am pleased to see that the activities of Keshav Memorial Educational Society have grown many folds from a small school in 1940 to a premier educational center with 9 different colleges, enrolling over 11,000 students. Keshav Rao Karatkar, in whose memory the society has been established. I am happy to have paid floral tributes at his statue at this campus. I am happy to know out of the total students, amongst 40% are girls. We need more of our girls to study and excel, especially in higher education institutions. Mahatma Gandhi said, and I quote, "A man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate an entire family," unquote. When girls are given equal access to education, they open out for knowledge. They are talent and potential. Ladies and gentlemen, of the 75th anniversary of the liberation of Hyderabad are being held as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav.
This holds great significance for the people of this region and for the nation as a whole. It was through the intervention of Sardar Vallabhbhai Patel that the Nizam was forced to surrender and Hyderabad was integrated into the Indian Union. It will be my privilege to pay floral tributes at the statue of the Iron Man after this function. I want to take this opportunity to pay tribute to all the brave leaders who fought for the liberation of Hyderabad, including Ramoji Gond, Baj Khan, Kamuram Bhim, Surabram Pratap Reddy, and Khan. Their valor and sacrifice will always be remembered and honored. Before coming here, I inaugurated a photo exhibition. The bravery of those patriots who fought for the liberation of Hyderabad. As we celebrate this historic moment, it is important for us to remember that our independence is not just about the liberation from oppressive rulers of the past. It is also about ensuring a bright future through well-conceived steps taken today. As we look to the future, it is up to you all, the young people of India, to ensure that we build upon the our forefathers and take our nation to new heights. This means working hard and striving for excellence in all that we do. It means being responsible and committed citizens who are willing to contribute to the betterment of our society. It means upholding the values and ideals of our Constitution and working towards a more inclusive and equitable society. It means fighting climate change and preserving the planet for future generations. My dear students, as students of diverse disciplines, including technology, management, law, commerce, humanities, and social sciences, you represent the entire range of academic and intellectual potential of India. I am confident that the implications of National Education Policy 2020 learner-centric education system to foster critical thinking and creativity. This shift in focus will not only benefit you as individuals, but will also contribute to the overall progress and development of the nation. My dear students, in the context of education, I want to emphasize on the importance of reading. The habit of reading is one of the most effective means for self-development. Reading may also help improve skills like your vocabulary, critical thinking, and communication skills. It is a skill that will serve you well throughout your life, irrespective of the career path you choose. A library in 1964, my learned predecessor President Dr. S. Radhakrishnan had said, and I quote, "It is easy to go to a cinema or a picture or see a drama or quarrel with friends, but to sit down and read a book from the first to the last page is an exercise in discipline," unquote. In an age of internet and social media, when attention span is getting shorter and communication is limited in characters, I will urge you to read more in order to improve your understanding and widen your perspective. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to appreciate the residents of Hyderabad for its successes as a modern hub for technology and innovation. Hyderabad is a city of opportunities with a thriving IT sector and modern
amenities that make it a great place to live and work. It is a city with a rich cultural heritage and a diverse population, making it a melting pot of ideas and perspectives. This diversity is one of the city's greatest strengths and has contributed to its success as a center of growth. I encourage all of you to avail opportunities that this city has to offer. Dear students, I am confident that you will play a vital role in realizing the dream of India, becoming a more prosperous, strong, and developed nation. I wish you the very best in your academic pursuits and bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.